Good morning, all of you. In this part, we will discuss about the characteristics, mechanism of the enzyme action, and the importance of the enzymes in the different reactions which are taking place in the body of the living organisms, whether they will be the plant or they will be the animals. So first of all, we will discuss about the enzymes. What are enzymes? Enzymes are nothing but these are the protein. These are the protein, but proteins are of different type. The protein may be the fibrous protein, the protein may be the globular protein, but these are the globular proteins. So enzyme are the globular proteins. So what they act, they increases the rate of the reaction in the body of the living organisms, in the body of the plant, in the body of the animals. So they behave like that of the catalyst. They behave like the positive catalyst, which increase the rate of the reaction, which we used in the laboratory to increase the rate of the reaction. Similarly, these are those type of chemical or the substance which are present in the body and increases the rate of the reaction. So what is the correct definition of the enzymes? The enzymes are the globular proteins which act as a biochemical catalyst, which increases the rate of the reaction, only under the mild conditions of temperature and pressure. Means they are temperature dependent, they are the pH dependent. ये आपके जो enzymes होते हैं, they are also the temperature dependent, they are also the pH dependent. So enzymes are the biocatalyst. These are the biocatalyst, means these are the like that of the catalyst and increases the rate of the reaction in the body of the living organisms. And these are the globular proteins also. So what is the nature of enzymes? As we already discussed, that they are the proteins. So the enzymes are the simple proteins. Some of the enzymes are the simple proteins, means they are made up of alpha amino acid. Amino acid may be of different type, alpha, beta, gamma, as we already discussed in the chapter of the carboxylic acid and also in the chapter of the amines. But the enzymes are those type of simple proteins which are made up of only the alpha amino acid. Alpha amino acid means there is a compound in which there is a carboxylic acid group, and the carbon next to the carboxylic acid group is the alpha carbon, and that particular alpha carbon there is a NH2 group. There is the NH2 group, means now it is called as the alpha amino acid because the NH2 group is present at the alpha position with respect to the CH group. So that is the first point about their nature. Okay, some enzymes are the simple proteins that is made up of the alpha amino acid. Some other enzymes are the conjugated proteins. Conjugate means जुड़ जाना. तो means आपके क्या होता है कि कुछ आपके ऐसे भी होती है, आपके जो enzymes जो होते हैं वो कैसे होते हैं? Some other enzymes are the conjugated proteins, means the protein part is associated with some non-protein part which control the biological activities. मीन्स आपके एक प्रोटीन पार्ट भी होगा, दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट भी साथ के साथ अटैच रहता है. तो कुछ जो आपके इंजाइम्स होते हैं वो कौन हो सकते हैं? आपके कंजुगेटेड प्रोटीन्स हो सकते हैं. तो जो नॉन प्रोटीन जो पार्ट है उससे हम क्या कहें? व्हाट इट कॉल्ड? द नॉन प्रोटीन पार्ट. The protein part is the prosthetic group. So the non-protein part, that may be the metal ion, that may be the organic molecule which is associated with the protein part, the enzyme is called as the prosthetic group. It's called as the prosthetic group. On that basis, whether the non-protein part is a metal ion or organic molecule, the prosthetic group may be the cofactor or maybe the coenzyme. If the non-protein part is a metal ion, then that prosthetic group is called as the cofactor. If the non-protein part is a organic molecule, then it is called as the coenzyme. Then you called it as a coenzyme. What is an write down the example of cofactor. Example of the cofactor here, for example, in hemoglobin, he means iron. He means iron, means non-protein part. Iron is a non-protein part. Globin is a protein part, globular protein आपकी जो हो गई. तो मीन्स जो हीमोग्लोबिन है, it has two part, protein, non-protein part. Non-protein part is the heme, that is the iron part. Protein part is the globin. Protein part is the globin. So these are the types of the prosthetic group. आपके prosthetic group आपके cofactor भी हो सकते हैं या आपके coenzyme भी हो सकते हैं. तो अगर आपके non protein part metal ion है तो आप उसे क्या कहेंगे? Cofactor. अगर आपके non protein part organic molecule है तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? That is the coenzyme. फिर इसके जो एग्जाम्पल है मेन, हम क्या ध्यान रखेंगे इसमें? जो कोएंजाइम होते हैं ये क्या करते हैं? कोएंजाइम्स आर सच टाइप ऑफ नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल व्हिच एक्टिवेट द इनएक्टिव प्रोटीन एंजाइम इन द बायोलॉजिकल रिएक्शन. जो आपके डिफरेंट बायोलॉजिकल रिएक्शंस है
उसमें अगर कोई भी इनएक्टिव प्रोटीन इंजाइम है, कोई भी इनएक्टिव प्रोटीन इंजाइम है, उसको ये एक्टिव कर देता है, उसको ये क्या कर देता है बोलो, एक्टिव। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ द एंजाइम, दैट इज द फंक्शन ऑफ द कोएंजाइम। वही आपके कोएंजाइम का क्या होता है, आपके फंक्शन होता है। तो बोलो कोएंजाइम क्या करता है, it activates the inactive protein enzyme in the biological system, so that is the function of the coenzyme. तो फास्टेस्ट जो एंजाइम है उसका नेम बताएं अपना, फास्टेस्ट नॉन एंजाइम इज द कार्बोनिक एनहाइड्रेज, वो आपके कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, वो फास्टेस्ट नॉन एंजाइम है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बड़ी सिंपल हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, जिसके अंदर ये प्रोसेस चलती है, जो भी हम फूड, जो भी हमें एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, वी गॉट एनर्जी फ्रॉम द फूड। तो हमें कैसे मिलती है, जैसे इंजेशन, मीन्स इंजेशन का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले जो फूड था वो हमने अपने माउथ के अंदर, मीन्स ईटिंग, हमने फूड को ईट किया, फिर ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इनटू द सिंपलर सब्सटेंस, रिलीज ऑफ एनर्जी, फाइनली द इजेशन। तो इसलिए आपके पास क्या होता है, आपके पास जो डिफरेंट क्या क्या आपकी जो प्रोसेस आ गई इसके अंदर, सबसे पहली प्रोसेस कौन आई बोलो, इंजेशन। इंजेशन मींस ईटिंग। उसके बाद क्या आई, डाइजेशन। डाइजेशन मींस द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इनटू द सिंपलर फॉर्म सो इट कैन बी एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर कर जाए। तो मींस डाइजेशन कैसी प्रोसेस हुई, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फूड दैट इज द नॉन डिफ्यूजिबल फूड इनटू द डिफ्यूजिबल फूड विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड एज द डाइजेशन। जो भी हमने खाना खाया, जो माउथ के अंदर हम चपाती लेते हैं, कुछ और फूड जो भी हम खाते हैं, वो डायरेक्ट हमारी ब्लड वेसल के अंदर एंटर नहीं कर सकता। सबसे पहले जो आपका वो जो फूड है जो डायरेक्ट एंटर नहीं कर सकता, वो नॉन डिफ्यूजिबल फूड है, वो कॉम्प्लेक्स फूड है, उसको कन्वर्ट किया जाता है डिफ्यूजिबल फूड के अंदर बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज द डाइजेशन, उसी को डाइजेशन कहते हैं। एंड दैट पर्टिकुलर प्रोसेस टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम, और ये एंजाइम की हेल्प से ही ये सारी प्रोसेस चलती है। तो मैं जो सिर्फ आपका डिफ्यूजिबल फूड है वही तो ब्लड वेसल ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर कर सकता है, बिकॉज द ब्लड स्ट्रीम्स आर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आपकी जो ब्लड स्ट्रीम है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, तो उसके अंदर आपके ये जो डिफ्यूजिबल फूड ही एंटर करता है, और तभी हमें क्या मिलती है बोलो, एनर्जी। अब देखो आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, देखो फूड लिया इसोफेगस से होते हैं स्टमक, फिर इंटेस्टाइन स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए फिर वो आपके लास्ट में इजेशन प्रोसेस हो जाती है। तो ये इन डायग्राम से आप ये चीजें बिल्कुल क्लियर कट आप देख पा रहे हैं कि फूड कैसे एंटर किया, और आपके इसोफेगस स्टमक आपके स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए हमें हमारी बॉडी जो है एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है, जो रिक्वायर्ड जो चीजें उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो नॉन रिक्वायरमेंट का जो सब्सटेंस होता है इट गेट वो अवे, वो बाहर निकल जाता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज द इजेशन। इसे आप क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ये आता है कि जो हमारी कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है हमारी माउथ से लेके एनस तक, दैट वोल एलिमेंट्री कैनाल हैज डिफरेंट मीडियम, मीन्स आपका जो माउथ होता है उसके अंदर ऑलमोस्ट आपके न्यूट्रल मीडियम होता है, आपके जो स्टमक है उसके अंदर एसिडिक मीडियम होता है, उसके बाद जो आपकी इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर आपके क्या जाता है, बेसिक मीडियम चला जाता है। सो द जो आपके एंजाइम्स होते हैं ये दे एक्ट इन डिफरेंट मीडियम। आपका कोई पर्टिकुलर जो एंजाइम होता है किसी एसिडिक मीडियम में वर्क करता है, दूसरा जो एंजाइम है वो आपके बेसिक मीडियम में प्रॉपरली एक्ट कर पाता है, कोई न्यूट्रल मीडियम में प्रॉपरली एक्ट कर पाता है। मींस द एंजाइम्स आर पीएच डिपेंडेंट, ये आपके पीएच डिपेंडेंट भी होते हैं। मींस जो आपके माउथ के अंदर जो स्मॉल न्यूट्रल मीडियम है उसके अंदर क्या होता है, देयर occurs very small amount of digestion only of carbohydrates due to the presence of the enzyme that is the tyline or the salivary amylase which is present in the saliva which is present in our buccal cavity। हमारी जो buccal cavity जो माउथ है उसके अंदर जो saliva प्रोड्यूस होता है, उस saliva के अंदर क्या होता है, जो एंजाइम salivary amylase, जो salivary amylase है वो किसका डाइजेशन करता है, सिर्फ थोड़े बहुत कार्बोहाइड्रेट का ही डाइजेशन होता है, लार्ज अमाउंट में नहीं, थोड़ा इससे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। आफ्टर दैट द फूड पासेस इन टू द इसोफेगस इनटू द stomach where there is a acidic medium, and in that acidic medium which is in the stomach there occurs the digestion of the proteins by the enzyme that is the pepsin trypsin. After that when the food passes in the small or the large intestine there occurs the digestion of the remaining carbohydrates and the large amount of digestion of the fats by using the enzyme that is the lipase enzyme। तो वहां पे इसका डाइजेशन हो जाता है। और जो हमारी कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है इसके अंदर जो पीएच की जो रेंज है वो भी डिफरेंट होती है, जैसे अभी आप डायग्राम में देख पाएंगे
जो माउथ है वहाँ पे पीएच की रेंज जैसे मैंने बताया ऑलमोस्ट न्यूट्रल मीडियम होता है। वैसे न्यूट्रल पीएच एट 25 डिग्री सेल्सियस हम 7 कहते हैं। तो पीएच जो होती है माउथ के अंदर ऑलमोस्ट नियर अबाउट 6.7 होती है। स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम है, जैसे आपको दिख रहा है पीएच नियर अबाउट 2 हमने लिख रखी है यहाँ पे। फिर स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो पीएच है ग्रेटर देन 7 होती है, बेसिक मीडियम होता है। इसके बाद जो अब हम देखेंगे व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और द प्रॉपर्टीज ऑफ द एंजाइम। एंजाइम की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो सबसे पहले तो हम वही बात लिख देते हैं जो इसकी डेफिनेशन होती है एंजाइम की। मींस एंजाइम आर द बायोकैटलिस्ट, दे इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन इन द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेकंड, दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। इनका नेचर बड़ा ही स्पेसिफिक होता है, ऐसा नहीं कि कोई हो एंजाइम किसी हो चीज का डाइजेशन कर दे। अभी आपने देखा साइड में आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जो सलाइवा या माइलेज है ये किस चीज का डाइजेशन करेगा, जो हमारे माउथ के अंदर सलाइवा के अंदर होता है। ऐसा नहीं कि ये लिपिड्स का डाइजेशन कर दे। इट कॉजेज द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ओनली टू स्मॉल एक्सटेंट, वो भी बहुत कम एक्सटेंट तक। ऐसे ही आपके जो स्टमक है, इन द स्टमक द एंजाइम्स दैट द पेप्सिन ट्रिप्सिन दे कॉजेज द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स। ऐसा नहीं कि लिपिड्स का डाइजेशन कर देंगे। मींस दे आर स्पेसिफिक इन नेचर। मींस स्पेसिफिक, the specific enzyme causes the digestion of the particular type of food। particular type of food के digestion में वो help करता है। तो means they are specific in nature। and next property is that they required in very small amount। means बहुत ही कम amount में जब release होता है enzyme तो वही काफी है to increase the rate of the reaction। means the small quantity of the enzyme is sufficient to catalyze the rate of the reaction। जो एंजाइम है उसकी बहुत ही कम अमाउंट ही काफी है टू इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन इन द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये प्रॉपर्टी नंबर आपकी थर्ड हो गई। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दे आर द टेम्परेचर डिपेंडेंट। एंजाइम्स जो होते हैं दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। जैसे कहा जाता है हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर 98.4 फ़ारेनहाइट कहा जाता है। मींस 30 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस के ऑलमोस्ट आप मान लें। तो उसी पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर के ऊपर ही जो एंजाइम है ये पेटरैक्ट करते हैं। अगर जैसे हमें फीवर हो जाए तो टेम्परेचर जब इंक्रीज हो जाता है तो इनकी जो वर्क करने की जो पावर है, जो एंजाइम है, वो उतना एफिशिएंटली, उतना इफेक्टिवली ये वर्क नहीं कर पाता है। तभी आपने देखा होगा जब हमें फीवर हो जाता है तो उसके दौरान हमें जैसे भूख नहीं लगती। तो क्यों नहीं लगती? क्योंकि टेम्परेचर हमारी बॉडी का ज्यादा हो गया तो फूड का डाइजेशन ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो एंजाइम है वो तो अट्रैक्ट कब करते हैं जब हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 98.4 फ़ारेनहाइट के ऊपर, लेकिन टेम्परेचर अगर उससे ज्यादा तो एंजाइम वर्क करना बंद कर देंगे। जो भी हम भोजन खाएंगे, जो भी हम फूड लेंगे, उसका प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाएगा। जब उसका प्रॉपर डाइजेशन ही नहीं होगा तो प्रॉपर फिर हमें अगर नहीं आएगी, हमें भूख नहीं लगेगी, तो फिर हम नहीं खा पाएंगे और खाना। तो मीन्स दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। Next, they are the pH dependent. Enzymes are pH dependent, means they act only at a particular pH range। जैसे माउथ के अंदर कौन एक्ट करता है, जैसे आपके स्लाइवरिया माइलेज जैसे पीएच रेंज 6.7। स्टमक के अंदर पीएच जैसे नियर अबाउट टू 2 है तो कौन बेटर एक्ट करता है? ये एंजाइम्स जो प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, पेप्सिन ट्रिप्सिन। आपके स्टमक के अंदर के बाद जब फूड आपका पास आउट हो जाता है आपके स्मॉल के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, वहाँ पे किसका डाइजेशन होता है? आपके लिपिड्स का डाइजेशन होता है। लाइपेज एंजाइम वहाँ पे बेटर एक्ट करता है। तो मीन्स दे कैन एक्ट ओनली एट ए पर्टिकुलर पीएच रेंज। तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, नेक्स्ट फीचर हो गया आपके एंजाइम्स का। जो एंजाइम्स होते हैं इनकी जो एक्टिविटी है, दे कैन बी कंट्रोल्ड, देयर एक्टिविटी कैन बी कंट्रोल्ड बाय द some other substance called as the inhibitor। उन्हें आप क्या कहते हैं? इनहिबिटर। इनहिबिटर may be beneficial और may not be beneficial। अगर हमें ये करना है कि हम चाहते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर ये जो रिएक्शन है ये अनवांटेड फॉर्म में चल रही है, हमारी बॉडी के अंदर कोई रिएक्शन अनवांटेड चल रही है जिससे हमें कोई डिजीज हो सकती है, उस वक्त अगर वो उस अनवांटेड रिएक्शन को रोक दें, उस पर्टिकुलर एंजाइम की एक्टिविटी को रोक दे। वो एंजाइम ऐसा है अगर वो नॉर्मली एक्ट करता है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल फंक्शनिंग चलती रहेगी, लेकिन अगर वो एक्सेस वर्किंग शो कर दे कोई एंजाइम, तो रेट ऑफ रिएक्शन एक्सेस में बढ़ जाए, हो सकता है कोई डिजीज हो जाए। तो उस एंजाइम की एक्सेस एक्टिविटी को रोकने के लिए बाहर से कोई जो सब्सटेंस हम डालते हैं या बॉडी के अंदर जो भी सब्सटेंस है जो उसकी रिएक्टिविटी को थोड़ा कम कर दे, और इतना कम कर दे कि अब नॉर्मली फंक्शनिंग बॉडी के अंदर चलना शुरू हो जाए, तो उस वक्त वो जो इनहिबिटर है वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है। अदरवाइज अगर कोई एंजाइम अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है और उस वक्त कोई इनहिबिटर आता है वो उसकी नॉर्मल एक्टिविटी को रोक देता है, तो वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी ही दिखा नहीं पाया, तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त जो आपका इनहिबिटर है वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो मींस जो एक्टिविटी है एंजाइम्स की, दे में बी कंट्रोल्ड बाय द इनहिबिटर, और उसकी जब एक्टिविटी को कंट्रोल्ड करता है
आपका इनहिबिटर, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल वे में भी कंट्रोल कर सकता है और हो सकता है वो बेनिफिशियल वे में कंट्रोल ना भी करे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है कि जो इसकी मोलिकुलर मास की रेंज क्या होती है। तो ये क्रैमिंग वाली बात है कि इसकी मोलिकुलर मास की जो रेंज होती है डेट रेंजेस फ्रॉम 10 की पावर 4 टू 10 की पावर 6 ग्राम पर मोल, और इसकी जो डायमीटर रेंज होती है वो 10 टू 100 नैनोमीटर होती है। इसके बाद नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो फूड है वो कितने टाइम के लिए कहाँ पर ऑलमोस्ट रहता है, जो रफ आपकी एवरेज टाइम जो डिटरमाइन किया गया है। तो माउथ के अंदर ऑलमोस्ट 5 टू 60 सेकेंड मीन 5 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक लगभग हम अपने जो फूड जो हम लेते हैं, इंजेक्शन जो हम करते हैं उसके दौरान लगभग 1 मिनट तक मैक्सिमम हम उसको अपने माउथ के अंदर रखते हैं। और पीएच रेंज हमने बताई दी थी अभी 6.7 ऑलमोस्ट। और जो इंजाइम हमने बता दिया स्लाइवरी अमाइलेज और टाइलिन होता है, जिसमें थोड़ा बहुत डाइजेशन किसका होता है बोलो, कार्बोहाइड्रेट्स का। उसके बाद नेक्स्ट स्टमक के अंदर जैसे मैंने बताया था पीएच रेंज ऑलमोस्ट 2 होती है, ये रेंज है 1 टू 3। और यहाँ पे जो फूड है कितने टाइम के लिए रहता है, डिपेंडिंग कि भाई हमने किस क्वालिटी का फूड खाया, क्या हमने खाया, ऑन दैट पर्टिकुलर बेसिस आपका फूड जो है 30 मिनट से लेकर 4 घंटे तक का समय लेता है डाइजेशन के लिए, जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है फूड के अंदर। एंड ऑल्सो डिपेंड अपॉन द बॉडी टू बॉडी के पर्सन टू पर्सन भी डिफर करता है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये पीएच की रेंज, और उसके बाद आपके फूड यहाँ पे रहता है 1 टू 2 आवर्स तक। और उसके बाद आपके जो नेक्स्ट कॉलन के अंदर चला जाता है, लार्ज स्मॉल के बाद लार्ज इंटेस्टाइन वाले पोर्शन में जब पहुंच जाए तो वहाँ पे आपके 12 से लेके 24 घंटे तक, 12 से लेके 24 आवर्स तक वहाँ पे, क्योंकि जो डाइजेशन है आपकी, जो लिपिड्स हम खाते हैं, इट टेक्स समथिंग लॉन्गर टाइम। तो जो स्पेसिफिक जो इंजाइम्स होते हैं उनका जैसे हमने बताया स्पेसिफिक नेचर होता है इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जैसे अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो जो डिफरेंट इंजाइम उसके ऊपर एक्ट करते हैं वो कौन होंगे, जैसे अमाइलेज, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज। तो ये आपके इंजाइम्स के ऊपर या आपके कार्बोहाइड्रेट के ऊपर क्या करते हैं बोलो, एक्ट करते हैं और इसका डाइजेशन करते हैं। और सिंपल यूनिट कौन बन गया आपकी, ग्लूकोज। एंड दे कन्वर्ट the complex form of the carbohydrate into the simpler form, that is the glucose, और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट जैसे प्रोटीन्स, प्रोटीन का जो डाइजेशन करते हैं वो डिफरेंट एंजाइम, दैट इज द पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्टाइडेज, दे कन्वर्ट इट इनटू द सिंपलर फॉर्म, इनटू द डिफ्यूजिबल फूड फॉर्म, क्योंकि ग्लूकोज एक डिफ्यूजिबल फूड फॉर्म है। आपने देखा होगा व्हेन देयर इज अ पेशेंट व्हिच रिक्वायर्स द लॉट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर डिजीज, किसी डिजीज के दौरान उसको लॉट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर उसको कौन सी किस चीज की बोतल उसके ऊपर आपने देखा होगा वो लगा देते हैं, वो किस चीज की, ग्लूकोज की बोतल देना उसे स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इट इज द क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। आपने कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा है विच इज द क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, ग्लूकोज। ग्लूकोज इज द क्विकेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये आपकी कैसी फॉर्म है, ये डिफ्यूजिबल फॉर्म है आपकी। नेक्स्ट प्रोटीन्स, जैसे मैंने बताया इसका जब डाइजेशन होता है तो किसमें कन्वर्ट होंगे, एमिनो एसिड के अंदर, तो ये डिफ्यूजिबल फूड हो गए। प्रोटीन क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड, नॉन डिफ्यूजिबल फूड। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो क्या थे, वो आपके जैसे, तो ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन कॉम्प्लेक्स जो फूड हम बाहर से खाते हैं, फिर उसका डाइजेशन होने के बाद आपकी सिंपलर फूड के अंदर कन्वर्ट होता है। आपके डिफ्यूजिबल फूड को ही सिंपलर फूड हम कह रहे हैं। आपके ऑयल या फैट्स जो हम खाते हैं उनका डाइजेशन जैसे लाइपेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फैटी एसिड के अंदर। ये सोल्युबलाइज फॉर्म होती है, या आपकी डिफ्यूजिबल फॉर्म होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे जो इंजाइम है वो एक्ट कैसे करता है, उसके लिए क्या क्या मैकेनिज्म है, डिफरेंट थ्योरी दी गई उसके लिए। एक तो लॉक की मैकेनिज्म है और दूसरा इंड्यूस्ड फिट थ्योरी भी है। तो सबसे पहले हम लॉक की मैकेनिज्म को ही देखेंगे। इज द मोस्ट पॉपुलर मैकेनिज्म ऑफ द एंजाइम एक्सचेंज इज द लॉक की मैकेनिज्म। जैसे घर में आपके लॉक और की होता है, तो पर्टिकुलर लॉक के अंदर एक पर्टिकुलर की ही वर्क करती है। ऐसा नहीं कि you can take any one of the key and which can fit in any of the lock, और वो किसी भी लॉक को अनलॉक कर सकती है। तो सिमिलरली here that is the lock की मैकेनिज्म कि यू हैव ए की, देखो आपके पास ये की है, मींस ये सबस्ट्रेट है और ये आपके पास लॉक है, इट एक्ट एज ए एंजाइम। अब इस एंजाइम के ऊपर कौन आके सिट कर सकता है, कोई पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही, पर्टिकुलर की ही आके बैठ सकती है, देखो ऐसे, और फिर ये लॉक की मैकेनिज्म बनता है। नाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस प्रॉपर्ली इनके बीच रिएक्शन हो जाती है। देखो वो हमने यहाँ पे डायग्राम के अंदर देखो शो करेंगे, नीचे एंजाइम हमने दिखाया, उसके ऊपर रिएक्टिव साइट है, देखो ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आए और देखो रिएक्टिव साइट के ऊपर देखो आराम से आके देखो ये फिट हो जाते हैं। नाउ दे कोलाइड इफेक्टिवली एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, और फाइनली ऐसे प्रोडक्ट बन जाता है। तो अब हम देखो उसको शो कैसे करते हैं अगर एग्जाम में आ जाए तो। सबसे पहले हमारी जो पहली स्टेप होती है वो क्या होती है बोलो, बाइंडिंग ऑफ द एंजाइम टू द सबस्ट्रेट
टू फॉर्म द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। देखो रिएक्टिव साइट है, रिएक्टिव साइट के ऊपर आपके जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है वो लोग क्या करेंगे, तो वो दोबारा से आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। These are the two different substrate of the reactant molecules which go and sit on the reactive site present on the surface of the enzyme to form the enzyme substrate complex. Now they collide effectively, result in the formation of the product, and the product now leave the surface of the enzyme, leave the reactive site of the enzyme. तो अब होता क्या है कि सबसे पहली स्टेप बोलो क्या होती है इसमें, बाइंडिंग ऑफ द एंजाइम, बाइंडिंग ऑफ द एंजाइम टू फॉर्म द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, टू फॉर्म द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब देखो जो ये एंजाइम है ये वर्क कैसे करता है, ये क्या कर देता है, ऐसा एंजाइम रिएक्शन की रफ्तार को कैसे बढ़ा देता है। पहले हम इस ग्राफ की हेल्प से आपको बताएं। देखो जो सबसे पहले आपके पास क्या थे, देखो हमने ये रेड लाइन लगाई, हमने लिखा रिएक्टेंट, यू हैव ए रिएक्टेंट, आपके पास रिएक्टेंट थे। उसके बाद हमने क्या किया, these reactant molecules, मान लीजिए एंजाइम ना होता तो क्या होता, these reactant molecules have something energy, reactant molecule के पास कुछ एनर्जी होती है, but that energy is not sufficient so that there occurs the effective collision, ताकि रिएक्टेंट के बीच में इफेक्टिव कोलिजन हो और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। इतनी एनर्जी नहीं है अभी रिएक्टेंट के पास, so we have the requirement of some extra energy from the outside। तो मीन्स कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देखो बाहर से लेते हैं ताकि ये प्रोडक्ट बन जाए, जैसे हमने दिखाया प्रोडक्ट, एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन कब बनेगा, व्हेन द रिएक्टेंट कोलाइड इफेक्टिवली विद ईच अदर। कोलाइड करने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट हैव सम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कॉल्ड द थ्रेशोल्ड एनर्जी। कुछ है, कुछ और चाहिए, जो टोटल एनर्जी रिएक्टेंट के पास होनी चाहिए उसे थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा जाता है। तो कुछ तो है, कुछ एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा वाली को कहते हैं एक्टिवेशन। देखो ये बाहर से हमने कुछ, ये इंटरमीडिएट बनेगा बाहर से, देखो ये कर्व है आपका, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे थ्रू दैट पर्टिकुलर पाथ। और जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए कुछ रिएक्टेंट के पास है, जो हमने ER से लिखा, मींस एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, कुछ एक्स्ट्रा बाहर से चाहिए, EAC लिखा, एक्टिवेशन एनर्जी, दैट मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड so that there occurs the effective collision in between the reactant molecules, ताकि रिएक्टेंट के बीच इफेक्टिव कोलिजन हो जाए। अब देखो ये जो रिएक्शन चली, ये कब चली, इन अब्सेंस ऑफ एंजाइम, अब्सेंस ऑफ एंजाइम है। लेकिन अगर हम एंजाइम यूज कर दे तो देखो क्या होगा, देखो आपकी ये एक्टिवेशन एनर्जी देखो लोअर हो जाती है, देखो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में इजीली देखो कन्वर्ट हो गए, एक्टिवेशन एनर्जी हमने दिखाई ना, ये कम हो गया, हमने लिख भी दिया इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, ये प्रेजेंस ऑफ एंजाइम में हुआ। आपके एंजाइम जब हमने डाला तब ऐसा करता है। तो एंजाइम क्या करता है, क्योंकि नाउ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, जो एनर्जी बैरियर है, जो ऊंचाई है वो आपकी कम हो चुकी है, अभी रिएक्टेंट इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो बोलो एंजाइम करता क्या है, एंजाइम कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ये क्या करता है, जैसे कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करते हैं, ऐसे ही एंजाइम भी क्या करता है, इट डिक्रीजेस द activation energy, it lowers the activation energy so that the substrate molecule, the reactant molecule can react effectively and convert it into the product, और finally आपका प्रोडक्ट बन जाता है। और जो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट के बीच का जो एनर्जी का गैप होता है उसे आप डेल्टा एच कहते हैं, दैट कॉल्ड द हीट ऑफ रिएक्शन, उसे आप डेल्टा एच कहते हैं। तो इस फाइनली क्या होता है कि आपके जो प्रोडक्ट बन जाता है, एंड इट लीव्स the surface, it leaves the surface of the enzyme, it leaves the reactive site of the enzyme and make it free for the fresh reactant molecule. Now the reactant, now these reactive site, these active site again freely available for the fresh reactant molecule, and that particular process get repeated and repeated again. तो मीन्स आपने क्या देखा कि इसके अंदर आपके क्या हुआ, देखो एक ये तो हमने बताया ग्राफ आप कैसे बनाएंगे, ग्राफ भी आप बनाएंगे जिसमें हमें शो करना होता है कि जो एंजाइम है वो क्या करता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है। तो अब हम दोबारा से ये ग्राफ बनाने के बाद आप दोबारा डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो मूवेबल डायग्राम है जो आपको दिख रहा है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आ गए, ऐसे मूव करते हुए तो आप पेपर के ऊपर शो नहीं कर सकते ना, तो इसलिए आप क्या करेंगे एग्जाम में, देखो एग्जाम में आप ऐसे शो करेंगे, पहला डायग्राम आप ये बनाएंगे, एंजाइम को शो करेंगे, उसके सरफेस के ऊपर हमने क्या लिख दिया, ये रिएक्टिव साइट है। अब इस रिएक्टिव साइट के ऊपर बोलो कौन आएगा, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आएगा। तो जो हमारा पॉइंट नंबर 1 बन जाएगा, मींस बाइंडिंग ऑफ द एंजाइम टू द सबस्ट्रेट टू फॉर्म द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, मींस द एंजाइम कि जो सरफेस है इट हैज द सम रिएक्टिव साइट ऑन विद स्पेसिफिक साइज, विद स्पेसिफिक शेप, ये पर्टिकुलर शेप के साथ है, सो ओनली द स्पेसिफिक सबस्ट्रेट कैन फिट
इन दिस रिएक्टिव साइट। ऐसा नहीं कि कोई हो सबस्ट्रेट आके और इन रिएक्टिव साइट के ऊपर बैठ जाए, ऐसा ही आपका जो रिएक्टेंट है वो आके इस रिएक्टिव साइट के ऊपर बैठ सकता है, जो इसके अंदर इजीली फिट हो पाए, जिसके अंदर आपकी काउंटर शेप होनी चाहिए, उसके अंदर इजीली फिट होना चाहिए टू फॉर्म द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और इस टाइप से देखो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और जो आपका एंजाइम है और जो रिएक्टेंट है, इनके बीच में ये जो कॉम्प्लेक्स बना, ये क्यों इसके ऊपर फिट हो पाए? रिएक्टिव साइट तो है लेकिन फिर भी क्यों? बाय फॉर्मिंग सम बॉन्ड्स लाइक द हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडरवाल बॉन्ड, इस टाइप से इनके बीच कोई ना कोई इंटरेक्शन होती है, जिसकी वजह से आपका एंजाइम सब रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स आपका बन गया। उसके बाद क्या होता है? नाउ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर। आप साइड वाले डायग्राम में भी देख सकते हैं, देखो ये दो सबस्ट्रेट हमने दिखाए थे वहां पे, they come and sit on the surface of the reactive sites of the enzyme. Now they collide with each other, result in the formation of the product. देखो प्रोडक्ट आप हमारा बन गया, और जो प्रोडक्ट है, अब उस प्रोडक्ट के पास वैसी काउंटर शेप नहीं है कि वो कंटिन्यूअसली आपके एंजाइम के सरफेस के ऊपर फिट रह पाए, तो इसलिए वो एंजाइम की जो रिएक्टिव साइट है उसको लीव कर देता है, और आपके दोबारा से एंजाइम जो मॉलिक्यूल है उनके ऊपर जो रिएक्टिव साइट है फिर से फ्री हो जाती है फॉर द फ्रेश रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, एंड दैट पर्टिकुलर प्रोसेस गेट रिपीटेड एंड रिपीटेड अगेन। सो दैट इज द लॉग की मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। तो एग्जाम में इस टाइप से आ जाए तो आप ये सारे पॉइंट लिखेंगे, ग्राफ भी ड्रा कर देंगे, डायग्राम भी आप ड्रा कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन द पीएच। वो हम पहले ही देख चुके हैं कि द एंजाइम्स दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। इनकी प्रॉपर्टीज में, कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा था, दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, दे आर पीएच डिपेंडेंट। अब उसको देखो हम कैसे डायग्राम के थ्रू आपको शो करते हैं। देखो ध्यान से देखना, डायग्राम के अंदर टेम्परेचर बोलो हमने कितना लिख रखा है, 30 डिग्री सेल्सियस। अब 30 डिग्री सेल्सियस हमारे नॉर्मल जो टेम्परेचर है वो तो नहीं है। अब नहीं है तो क्या हुआ, वो प्रॉपरली वर्क सिर्फ अपने आपके 37 डिग्री सेल्सियस जो हमारी बॉडी टेम्परेचर होता है उससे कम हो जाए तो भी प्रॉपरली वर्क नहीं करते, उससे ज्यादा हो जाए तो भी वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते। अब देखो ये आपके जो एंजाइम है उसके सरफेस के ऊपर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल देखो आके नहीं बैठेंगे और कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब हम देखो टेम्परेचर के साथ देखते हैं, देखो मॉलिक्यूल आपके कोलाइड करने शुरू हो गए, उनकी एनर्जी बढ़ गई। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ऑप्टिमम जो टेम्परेचर आता है तो इजीली उसके जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो उसके सरफेस के ऊपर बैठ जाते हैं, एंजाइम के सरफेस के ऊपर, दे गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, दोबारा से आप ग्राफ को देखना, देखो ये टेम्परेचर देखो धीरे धीरे आपका इंक्रीज हो रहा है, और आपके वाई एक्सिस के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन देखो, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गई इनिशियली जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता, बट एट ए पर्टिकुलर आफ्टर द पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर अगेन द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। तो मींस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज है, देखो ये पर्टिकुलर रेंज है, देखो दोबारा से हम ग्राफ को शो कर रहे हैं, ये वो पर्टिकुलर रेंज है, देखो ये इस पर्टिकुलर रेंज के ऊपर ही आपकी जो एंजाइम है वो आपके सबसे बेटर एक्शन शो करते हैं। देखो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज के ऊपर यहीं पे रेट ऑफ रिएक्शन बोलो क्या आपकी मैक्सिमम है, देखो यहीं पे रेट ऑफ रिएक्शन बोलो क्या है, ये मैक्सिमम। अगर टेम्परेचर इससे कम है तो भी रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी एंजाइम की। तो ये एंजाइम का एक्शन हमने दिखा रखा है डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, कि एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर दे वर्क बेटर, वो बेटर वर्क करते हैं। तो उसके लिए ग्राफ है, तो ये आपको ड्रा कर देना चाहिए एग्जाम में। उसके बाद देखो ऑप्टिमम जैसे पीएच के बारे में बताएं, कि एंजाइम है जो हमने येलो कलर का जैसे शो किया, ये जो एंजाइम है इसके सरफेस के ऊपर देखो ये रिएक्टिव साइट है। तो जैसे ही हम पीएच को चेंज करते हैं, जैसे बोलो हम क्या करते हैं पीएच को चेंज, तो पीएच को चेंज करने से क्या हो जाता है, जो ये शेप है रिएक्टिव साइट की बोलो जो क्या है बोलो शेप, ये शेप ही चेंज हो जाएगी। रिएक्टिव साइट जो है आपको दिख रही है एंजाइम के सरफेस के ऊपर, जो ये रिएक्टिव साइट है इसकी पर्टिकुलर शेप है, इसके ऊपर पर्टिकुलर रिएक्टेंट विद काउंटर शेप ही आके फिट हो सकते हैं, तो दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तो आके फिट हो ही नहीं सकते। तो मैं जैसे ही हम पीएच को चेंज करते हैं दैट शेप गेट चेंज, ये शेप ही चेंज हो जाती है। बोलो शेप क्या हो जाती है, चेंज। जब शेप चेंज हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है इस पर्टिकुलर एंजाइम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। जब इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो ये जो आपका एंजाइम है ये इनएक्टिव फॉर्म बन जाएगी, इसकी कैसी फॉर्म बन जाएगी, इनएक्टिव। अब इसकी वजह से कोई और रिएक्शन की रफ्तार नहीं बढ़ पाएगी। तो मीन्स ये जो आपके एंजाइम होते हैं दे एक्ट बेटर एट ए पर्टिकुलर पीएच, दे एक्ट बेटर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट थ्योरी। ये पाया गया कि कुछ आपके जो एंजाइम ऐसे हैं, कुछ एंजाइम ऐसे हैं विच कैन एक्ट ऑन मोर देन वन सबस्ट्रेट, आपके उसके ऊपर एक से ज्यादा टाइप के सबस्ट्रेट भी आके बैठ सकते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए वो एक्सप्लेन किया गया इस थ्योरी की हेल्प से, जिसको कहा गया इंड्यूस्ड फिट थ्योरी।
induced fit theory for the enzyme action. और ये किस लिए दिया गया मॉडल? Because this model is used to explain why some of the enzyme can act on more than one type of substrate, and it involves the following step. इसमें देखो क्या क्या steps होंगी. Step number 1 उसी टाइप से होगा, लेकिन एक डिफरेंस रहेगा. देखो आपके पास ये एंजाइम है, एंजाइम के सरफेस के ऊपर रिएक्टिव साइट है. नाउ द होना क्या चाहिए कि द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैविंग द काउंटर शेप ऑफ द रिएक्टिव साइट प्रेजेंट ऑन द एंजाइम, उसकी जो काउंटर शेप वाले ही रिएक्टेंट को आके इसके सरफेस के ऊपर सिट करना चाहिए और आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए. लेकिन हमारे पास देखो ये कोई दूसरा रिएक्टेंट आ गया, इसके पास एग्जैक्ट काउंटर शेप नहीं है. लेकिन अब ये क्या करेगा, जो सबस्ट्रेट है इट विल कम नियर टू द एंजाइम हैविंग द इनएक्टिव रिएक्टिव साइट. अब ये जो सरफेस के ऊपर जो जिसे हम रिएक्टिव साइट करें वो इस रिएक्टेंट के हिसाब की नहीं है. इस रिएक्टेंट के कंपैरिजन में देखें तो वो इस रिएक्टेंट के लिए तो वो इनएक्टिव है. लेकिन अब ये क्या करेगा, नाउ इट विल बाइंड टू दीज साइट्स एंड इट causes a change in the shape or in the reactive site of the enzyme so that it becomes complementary to each other, ताकि ये जो शेप है इनके आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए. देखो जैसे यहाँ पे आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आया एंजाइम के पास गया, उसकी जो रिएक्टिव साइट जिसकी काउंटर शेप आपस में इनकी मैच नहीं करती थी, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल वहां पे जाता है उसके सरफेस के ऊपर और उसको इंड्यूस कर देता है, उस शेप के अंदर चेंज ला देता है और वो इजिली रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अब एंजाइम के सरफेस के ऊपर जाके फिट हो जाता है और इस तरह से एंजाइम रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स बनता है. तो आपने जो लॉकी मैकेनिज्म था और जो इंड्यूस्ड फिट थ्योरी है, दोनों में डिफरेंस क्या है? अकॉर्डिंग टू द लॉकी मैकेनिज्म आपने क्या देखा था, वही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आके एंजाइम की रिएक्टिव साइट के ऊपर सिट होता है जिसके पास काउंटर शेप हो. इंड्यूस्ड फिट थ्योरी में क्या कहा गया कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसके पास जो एंजाइम के सरफेस के ऊपर रिएक्टिव साइट है बिल्कुल उसके ऑपोजिट काउंटर शेप नहीं होती. इवन देन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कम एंड सिट on this site and it causes the induction, it causes the change in the shape of the reactive site of enzyme so that these two are complementary to each other. जो आपके एंजाइम के सरफेस की रिएक्टिव साइट और जो काउंटर आपकी जो शेप है आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की वो आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए ताकि वो एक दूसरे के अंदर इजीली फिट हो जाए और बन जाता है आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और द एंजाइम रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स. नाउ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल which are induced fit, उनके induced करके जो फिट हो चुके हैं, now they collide with each other result in the formation of the product. और इस तरह से जो ये एंजाइम था इसने क्या करता है उसी टाइप से सेकंड पॉइंट तो वही होगा, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट. क्योंकि एंजाइम क्या करते हैं, दे lowers the activation energy so that the substrate molecule react effectively efficiently with each other result in the formation of the product. और इस तरह से एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाता है. और जो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है, ये जो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनते ही साथ आपकी जो प्रोडक्ट है वो लीव कर देता है एंजाइम के सरफेस को और दोबारा से जो आपके एंजाइम है अपनी ओरिजिनल उसकी जो रिएक्टिव साइट है उसी ओरिजिनल शेप के अंदर आ जाती है. नाउ द प्रोडक्ट हैज नो इंटरेक्शन विद द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम सो दे लीव द एंजाइम सरफेस और आफ्टर द लीविंग द एंजाइम सरफेस द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम रिटर्न्स इनटू देयर इनएक्टिव स्टेट. वो दोबारा से अपनी उसी इनएक्टिव स्टेट के अंदर आ गई, अपनी उसी शेप के अंदर आ गई और नाउ इट बिकम्स अवेलेबल फॉर द new fresh reactant molecules and that particular process get repeated and repeated again और ये process इसी टाइप से बार बार repeat होती चली जाती है. तो ये थी आपकी induced fit theory. बोलो कौन सी theory थी ये? Induced fit theory. So these are the two different theories which explain the mechanism of enzyme action. First is the Locke mechanism, other one is the induced fit theory. Now we will see about the application of the enzyme. We have already discussed all the application of the enzyme, but some of the remaining are, कुछ remaining भी हैं, कुछ हमने जो पहले पढ़े वो भी हैं. जैसे इंडस्ट्रियल यूज भी है इसका. आपकी जो वाइन फॉर्मेशन है, जो बियर फॉर्मेशन होती है जिसके दौरान फर्मेंटेशन प्रोसेस चलती है, फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा क्या प्रिपेयर की जाती है, वाइन और द बियर. तो वो एक एंजाइम्स की प्रेजेंस के अंदर ही ये सारी प्रोसेस चलते हैं. एंजाइमेटिक एक्शन होता है यहाँ पे. इन्वर्टेज जैसे एंजाइम इट कन्वर्ट द सुक्रोज इनटू द ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज. ऐसे आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है, नेम द एंजाइम व्हिच कन्वर्ट द सुक्रोज इनटू द ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज. तो उस एंजाइम का क्या नाम है? इन्वर्टेज. एक चीज और ध्यान रखें, जब भी आप इन्वर्टेज, वैसे तो नाम से पता चलता है एंजाइम का जो नेम है वो एंड होता है एएससी से. एएससी लिखते हैं, इन्वर्टेज ऐसे जैसे लाइपेज जैसे जो वर्ड थे. लेकिन इवन देन जो भी जब भी आप एंजाइम का नाम लिखें उसके बाद ब्रैकेट में ई लिखते हैं या ई लिख के उस पूरे के बाहर देखो इस टाइप से आप सेल पे लगा दे, देखो इस टाइप से
तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि दैट नेम इज ऑफ एंजाइम, वो जो नाम है वो एंजाइम का है। तो इन्वर्टेज जो एंजाइम है वो किसको कन्वर्ट करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर। जाइमेज एंजाइम क्या करता है, इट कन्वर्ट द ग्लूकोज इनटू द इथेनॉल। डाइस्टेज जो एंजाइम है ये क्या करता है, इट कन्वर्ट द स्टार्च इनटू माल्टोज। और जो माल्टेज जो एंजाइम है वो क्या करता है, इट कन्वर्ट द माल्टोज इनटू ग्लूकोज। तो इस तरह से आपको एंजाइम्स के नाम ध्यान रखने हैं। यूरिएज एंजाइम, यूरिएज एंजाइम क्या करता है, इट कन्वर्ट द यूरिया इनटू अमोनिया एंड CO2। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, जैसे आपको पता है स्टमक के अंदर ये एक्ट करता है पेप्सिन ट्रिप्सिन। दे कन्वर्ट द जो आपके जो नॉन डिफ्यूजिबल जो फूड होता है, जो प्रोटीन्स होते हैं उनका डाइजेशन करता है, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, इनटू द आपके डिफ्यूजिबल फूड के अंदर जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है में क्या मिलते हैं, सबसे सिंपलर फॉर्म उसकी कौन, एमिनो एसिड के अंदर। तो जो पेप्सिन है दे कन्वर्ट द प्रोटीन्स इनटू द एमिनो एसिड इन द स्टमक इन द एसिडिक मीडियम। लैक्टोबैसिली, ये जो एंजाइम है ये क्या काम करता है, इट कन्वर्ट्स द मिल्क इनटू कर्ड, दूध को दही में बदलता है। और जो आपके जो एंजाइम्स हैं इनका क्यूरेटिव एक्शन भी है, इनका क्यूरेटिव एक्शन भी है। जैसे आपका जो एंजाइम स्ट्रेप्टोकाइनेज है, इसका क्या वर्क है, क्या फंक्शन, इट इज यूज्ड टू डिसॉल्व द ब्लड क्लॉटिंग इन द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर कहीं पे भी ब्लड के क्लॉट्स हो गए हैं तो उसको ये डिसॉल्व करने का काम करता है। एंड दस इट चेक्स द हार्ट अटैक, और ये हार्ट अटैक आने से रोकता है, क्योंकि जब क्लॉटिंग को ये डिसॉल्व कर देगा तो क्लॉटिंग रहेगी नहीं, तो हार्ट अटैक नहीं आएगा। दूसरा एंजाइम जैसे फिनाइल एलिलाइन हाइड्रोक्सिलेज, ये एंजाइम क्या करता है, इट इज नेसेसरी टू अवॉइड डिजीज दैट कॉल्ड द फिनाइल कीटोन यूरिया, या सिंपली कह देते हैं फिनाइल कीटोयूरिया। ये कैसी डिजीज होती है जिसके अंदर जो सब्सटेंस है, कंपाउंड है, हार्मफुल सब्सटेंस, वो डिपॉजिट हो जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर एंड इट लीड्स टू द ब्रेन डैमेज और द मेंटल रिटार्डेशन इन द चिल्ड्रंस। नेक्स्ट जैसे एंजाइम है ये टायरोसिनेज, ये क्या करता है, इट इज नेसेसरी टू अवॉइड डिजीज दैट कॉल्ड द एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म में क्या होता है, इस डिजीज के दौरान जो आपका पिगमेंट होता है, जो जिसकी वजह से हमारा स्किन का जो पर्टिकुलर कलर है वो होना चाहिए, जब वो सिंथेसाइज ही नहीं होगा आपका पिगमेंट हमारी स्किन के अंदर, तो क्या होगा, जो हेयर हमारी स्किन है, जो आइरिस है, उसका जो कलर होगा वो वैसा नहीं होगा जो नॉर्मल हमारी स्किन का होना चाहिए। तो विदाउट पिगमेंट हमारे स्किन का कलर रह जाएगा। और कहाँ पे इसको यूज करते हैं, द प्रोडक्शन ऑफ द मेडिसिन, लाइक इन द प्रोडक्शन ऑफ जैसे इंसुलिन, पेनिसिलिन एंड सो ऑन। इस टाइप से प्रोडक्शन, मेडिसिन की प्रोडक्शन में भी एंजाइम्स की हेल्प ली जाती है। और कहाँ पे यूज करते हैं, इट इज आल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द चीज बाय द coagulation of the milk, and it is also used in the manufacture of the sweet syrup from the corn starch, from the corn starch। तो ये थी डिफरेंट इसकी एप्लीकेशन। अब कुछ और डेफिनेशन है हमारी। अब हम थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे एंजाइम इनहिबिटर्स के बारे में। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपके इनहिबिटर्स होते हैं दे मे और मे नॉट बी बेनिफिशियल फॉर अस, ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो भी सकते हैं और बेनिफिशियल ना भी हो। अगर अनवांटेड जो रिएक्शन चल रही है, अनवांटेड फास्ट रिएक्शन एंजाइम किसी एंजाइम की वजह से स्टार्ट हो चुकी है, उस अनवांटेड फास्ट रिएक्शन को थोड़ा स्लो कर दे ताकि नॉर्मल बॉडी एक्टिविटीज हमारी बॉडी के अंदर चलनी शुरू हो जाए, तो उस वक्त तो इनहिबिटर हमारे लिए होंगे यूजफुल। लेकिन अगर नॉर्मल बॉडी एक्टिविटी को ये रोक देता है तो वो कहलाते उस वक्त वो लोग क्या, इनहिबिटर ही काम करते, वो हमारे लिए उस वक्त यूजफुल नहीं है। तो व्हाट आर द एंटागोनिस्ट और द एंजाइम इनहिबिटर्स। तो एंजाइम इनहिबिटर कौन होते हैं, दीज आर सच टाइप ऑफ केमिकल्स द ड्रग्स व्हिच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली blocks the reactive site of the enzymes, which directly or indirectly blocks the reactive site of the enzymes are called as the antagonist। अब उसे एंटागोनिस्ट या एंजाइम इनहिबिटर कहते हैं। दे आर यूजफुल, वो लोग कब, when the blocking of the message is required, जब हम चाहते हैं कि रिएक्टिव साइट अब रुकनी जरूरी है ताकि वो अनवांटेड रिएक्शन जो एंजाइम की वजह से चल रही है ताकि वो रुक जाए, उस वक्त ये हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं। नेक्स्ट एगोनिस्ट कौन होते हैं, एगोनिस्ट वो होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर किसी को डायबिटीज मेलाइटस हो गई, शुगर डिजीज हो गई, तो वो क्यों हुई, ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ रिलीज, आपके जो एब्सेंस में किसकी, इंसुलिन में, जो आपका जो पेनक्रियास है वो इंसुलिन को रिलीज नहीं कर पा रहा, तो हमारे ब्लड के अंदर अब इंसुलिन नहीं है जिसकी वजह से ब्लड के अंदर शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो उस वक्त हम आर्टिफिशियल बाहर से केमिकल लेते हैं, आर्टिफिशियल इंसुलिन लेते हैं ताकि ब्लड के अंदर शुगर लेवल मेंटेन रहे। तो मीन्स ऐसी ड्रग, ऐसा केमिकल विच मेंटेन्स द नेचुरल फंक्शन ऑफ द नेचुरल फंक्शन विच मेंटेन, बोलो क्या, नेचुरल फंक्शन इन द एब्सेंस ऑफ द नेचुरल मैसेंजर। नेचुरल मैसेंजर तो कौन था, जो आपके पेनक्रियास के अंदर से अपने आप नेचुरली इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता, अब वो इंसुलिन तो नहीं है, जो क्या करता था,
जो एक्सेस ऑफ जो शुगर थी ब्लड के अंदर, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता था, और वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाती थी, लीवर के अंदर। अब मान लीजिए जो इंसुलिन है वो प्रॉपर अमाउंट के अंदर रिलीज नहीं हो पा रहा ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो जिसकी फिर क्या करें, हमें बाहर से इंसुलिन ही बढ़ती है, तो वो इंसुलिन जो बाहर से वो क्या करेगी, नाउ इट विल वर्क इन प्लेस ऑफ द नेचुरल मैसेंजर। जो नेचुरल इंसुलिन थी उसकी जगह वो काम करेगी, तो ऐसे सब्सटेंस को एगोनिस्ट कहते हैं। सो द ड्रग्स व्हिच मेंटेन्स द नेचुरल फंक्शन इन द एब्सेंस ऑफ द नेचुरल मैसेंजर आर कॉल्ड एज द एगोनिस्ट। इसे आप एगोनिस्ट कहते हैं। अब ध्यान से देखिए इस डायग्राम के अंदर, देखो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का ये हमने दिखाया है डायग्राम, आगे हम देखेंगे कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव होते हैं। इस डायग्राम में आपको साफ साफ क्लियर कट दिख रहा है। देखो जब ये आपका इनहिबिटर जाके बैठता है एंजाइम के रिएक्टिव साइट के अपोजिट में, तो देखो रिएक्टिव साइट की शेप ही चेंज होगी। अब सबस्ट्रेट उसके ऊपर आके बैठ ही नहीं पा रहा। तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। टाइप ऑफ एंजाइम इनहिबिटर्स, ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स भी हो सकते हैं, वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स भी हो सकते हैं। और these non-competitive inhibitors also called as the allosteric inhibitors, आप उन्हें allosteric inhibitors भी कह देते हैं। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कौन होते हैं? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर दोज which directly blocks the reactive site of the enzyme। जो enzymes हैं उनकी, देखो जैसे हमने ये enzyme दिखाया, इसके ये रिएक्टिव साइट है, ये आपका इनहिबिटर है, ये सबस्ट्रेट है जो आके बैठना चाहता है रिएक्टिव साइट के ऊपर ताकि रेट ऑफ रिएक्शन हमारी चले। अब इनहिबिटर्स जो है वो पहले ही आके बैठ गए, देखो सबस्ट्रेट की जगह। कैसे? बाय either by forming the ionic bond or the hydrogen bond or the van der Waals force of attraction or the dipole-dipole direction. By any one of the interaction, these inhibitor molecules get attached, get sit on the reactive site of the enzyme and thus permanently block it। अगर ये strong bond बन जाए, देखो ये enzyme था, ये आके बैठ गया target molecule इसके surface के ऊपर inhibitor। Now the reactive site is not freely available for the substrate molecule, जो substrate है उसके लिए अब freely available है ही नहीं, मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। अब रिएक्शन की रफ्तार आपकी क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है। तो इसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। मीन्स दोनों में कंपटीशन था। जो इनहिबिटर्स मोलिक्यूल्स चाहते हैं कि हम जाके बैठ जाएं आपकी रिसेप्टर साइट के ऊपर, एंजाइम की रिएक्टिव साइट के ऊपर, सबस्ट्रेट चाहता था मैं ही वहां पे जाके बैठ जाऊं। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनाएगा, जिसकी ज्यादा एफिनिटी होगी फॉर द रिएक्टिव साइट, वही जाके बैठेगा। तो इफ द इनहिबिटर्स हैव मोर एफिनिटी, inhibitors have the more affinity for the reactive site of the enzymes, they will go and sit at a quicker rate than that of the substrate, और substrate आपके साइड में रह जाएंगे, वो बैठ नहीं पाएंगे, इसलिए रिएक्शन की रफ्तार डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद आपके नेक्स्ट आ जाता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और द एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स। ये कौन से होते हैं? जो इनडायरेक्टली ब्लॉक करते हैं। The inhibitors, the drugs which indirectly blocks the reactive site of the enzyme by modifying the shape of the reactive site of the enzyme। देखो ये आपके एंजाइम है, इनकी रिएक्टिव साइट भी है। इसके ऑपोजिट में आप देखें, देखो ये ऊपर साइड कौन सी है? रिएक्टिव साइट, जैसे भी हमने लिखा। इसके ऑपोजिट साइड में जो साइट है वो कौन सी? वो एलोस्टेरिक साइट कहलाती है। ये जो एलोस्टेरिक साइट है, यहाँ पे इनहिबिटर आके बैठेगा और जो रिएक्टिव साइट है उसकी शेप को चेंज कर देगा। तो मीन द साइट विच आर प्रेजेंट नियर टू द रिएक्टिव साइट, देखो रिएक्टिव साइट के नियर बाय ही प्रेजेंट है, उसके ऑपोजिट ही प्रेजेंट है, उसे एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। अब इन एलोस्टेरिक साइट के ऊपर कौन आके बैठेगा? देखो ये इनहिबिटर है, ये सबस्ट्रेट है। अब these inhibitor molecules go and sit on the, देखो ये गया और देखो ये बैठ गया आपके टारगेट मोलिक्यूल। इनहिबिटर जो है कहाँ पे बैठ गया? एलोस्टेरिक साइट के ऊपर जाके बैठा। और देखो बैठते ही साथ, देखो अभी मैंने बैठते हुए दिखाया, और बैठते ही साथ आप ध्यान से स्क्रीन के ऊपर देखते हैं, देखो एकदम क्या हुआ, देखो ये ऐसा हो गया, शेप ही चेंज हो गई। देखो मैं दोबारा से आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। जो रिएक्टिव साइट है, रिएक्टिव साइट की शेप की तरफ आप नजर रखिए। देखो ये रिएक्टिव साइट की शेप है, देखो दैट इज द रिएक्टिव साइट। देखो ये रिएक्टिव साइट है, यहाँ पे ये जो रिएक्टिव साइट है इसकी शेप ऐसी थी, लेकिन जैसे ही ये आके बैठ गया, बोलो कौन आके बैठ गया यहाँ पे? आपके टारगेट मोलिक्यूल कहाँ पे आके बैठे? एलोस्टेरिक साइट के ऊपर। एलोस्टेरिक साइट के ऊपर जैसे ही आके बैठे और बैठते ही साथ एकदम देखो ये हो गया, नाउ द शेप ऑफ द रिएक्टिव साइट गेट चेंज, वो चेंज हो गई है। और अब जो आपके रिएक्टेंट मोलिक्यूल है, जो सबस्ट्रेट होंगे, वो इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अब सबस्ट्रेट की देखो जो काउंटर शेप है, देखो कैसी, देखो तो ये है, देखो ये जो हमने ऊपर बना रखी शेप, देखो ये। अब क्या ये बैठ पाएगा इसके ऊपर? ये यहाँ पे नहीं बैठ पाएगा, और इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बोलो क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो ये थे आपके नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो इनहिबिटर्स दो टाइप के होते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स, कॉम्पिटिटिव और द नॉन कॉम्पिटिटिव। which directly blocks the reactive site, सीधे ही रिएक्टिव साइट के ऊपर जो जाके बैठ जाए, वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं। जो डायरेक्टली
नहीं बैठते रिएक्टिव साइट के ऊपर जाके, वो एलोस्टेरिक साइट के ऊपर जाके बैठते हैं, एंड दस चेंजेस द शेप ऑफ द रिएक्टिव साइट सो दैट द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स are not able to identify, not able to identify or recognize the particular enzyme reactive site. अब उसको पर्टिकुलर जो enzyme reactive site थी अब उसको आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएंगे कि हाँ ये वही रिएक्टेंट है, ये वही एंजाइम है जिसके ऊपर आपको आके बैठना है, तो उसको अब रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को बैठने के लिए आपकी रिएक्टिव साइट अब अवेलेबल नहीं होगी, तो इसलिए जो रिएक्टेंट है, जो सबस्ट्रेट है, वो नॉर्मल रेट के ऊपर ही आपस में कोलाइड करते रहेंगे और नॉर्मल रिएक्शन चलती रहेगी, बिकॉज द enzymes molecules are not freely available for the reactant molecules, इसलिए रिएक्शन की रफ्तार आपकी डिक्रीज हो जाती है। तो ये था आपके डिफरेंट इंजाइम्स के बारे में। और अगर हम ये चाहते हैं ये जो साइट है परमानेंटली ब्लॉक हो जाए तो कैसे हो सकती है, अभी मैंने पीछे बताया था, द स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, द स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द एंजाइम एंड द इनहिबिटर्स, देन द एंजाइम गेट परमानेंटली ब्लॉक, एंजाइम परमानेंटली ब्लॉक हो जाएंगे। तो दैट इज ऑल अबाउट द एंजाइम्स, जिसमें आपने एंजाइम्स की डेफिनेशन, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके एंजाइम एक्शन के बारे में, उनके जो प्रॉपर्टीज थी, उनके जो फंक्शंस थे, उनकी जो इंपॉर्टेंस थी आपने वो देखी, और लास्ट में आपने एंजाइम इनहिबिटर्स के बारे में भी देखा कि एंजाइम इनहिबिटर्स कौन होते हैं, एंटागोनिस्ट किसे कहा जाता है, और उसकी डिफरेंट टाइप क्या थी। आपकी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स भी हो सकते हैं और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स भी हो सकते हैं। सो थैंक यू।